Good morning, class 4 students. Welcome back to online class. Today we will study a new chapter from our English reader book. Okay? So open your English reader book, page number 67, chapter number 12, The Fisherman. Open your English reader book, turn to page number 67, chapter number 12, The Fisherman. Okay? So this is a poem, and this beautiful poem is written by Abby Farwell. Okay, so Abby Farwell, she wrote many poems, many stories. Okay, so on this poem, uh, Abby Farwell has described his life of a fisherman as how his profession has become a large part of his life. Okay, so let's see, Abby Farwell. See, she is Abby Farwell, and she wrote many stories like the Book of Sons and Friendly Beasts. This is a very beautiful, very good story book. So you can purchase online also. So गुड मॉर्निंग क्लास 4 स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्ड टर्मिनल ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग इंग्लिश रीडर की बुक पढ़ेंगे। सो मेरे साथ खोलेंगे पेज नंबर 67, इंग्लिश रीडर की बुक, पेज नंबर 67, चैप्टर नंबर 12, द फिशरमैन। ये एक पोयम है बेसिकली, और इसको लिखा है एबी फारवेल ने, इन्होंने। और इस पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उन्होंने बताया है एक फिशरमैन के बारे में, मतलब एक मछुआरे के बारे में, कि उसका जीवन अपने प्रोफेशन से, अपने व्यवसाय से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, और उसका जो व्यवसाय है, जो प्रोफेशन है, वो उसके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सब कुछ वही है। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं इस सब चीजों की। ये जो पोयम है, इस पोयम को देखते हैं, पढ़ते हैं, और फिर जानते हैं उन्होंने किस प्रकार डिस्क्राइब किया है एज फिशरमैन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। So students, today on this video lesson, I'll read this poem. Okay, everything. I'll read this poem and I'll explain everything in Hindi also. Okay, so आज की वीडियो लेक्चर में मैं इस पोएम को पढ़ूंगा और आपको उसकी मीनिंग बताऊंगा, उसका अर्थ बताऊंगा हिंदी में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, और आप कोशिश कीजिए कि मेरे पीछे पीछे बोले, ताकि आप सही सही प्रोनाउंस कर पाए, ताकि आपका फायदा हो। है? तो इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। द फिशरमैन गोज आउट एट डॉन। द फिशरमैन गोज आउट एट डॉन when everyone's abed, and from the bottom of the sea draws up his daily bread. His life is strange, half on the shore, half upon the sea. Not quite a fish, and yet not quite the same as you and me. The fisherman has curious eyes. They make you feel so queer, as if they had seen many things on wonder and of fear. They are like the sea on foggy days, not grey, nor yet quite blue. They are like the wondrous tales he tells, not quite, yet maybe true. He knows so much of boats and tides, of winds and clouds and sky. But when I tell of city things, he sniffs and shut one eye. Okay, students, very beautiful poem. I'm explaining stanza by stanza. ये बहुत अच्छी पोएम है, और मैं इसको स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, so on first stanza, the fisherman goes
the first stanza, the poet, she said that the fisherman goes out at dawn. That means the fisherman goes to sea early in the morning, when everyone's abed, means asleep, and he struggled his way into the sea to get the fish from the sea, but which he can buy, by which he can buy food or bread for his family. So the fisherman goes out at dawn, when everyone's abed, and from the bottom of the sea draws up his daily bread. So पहला जो स्टैंजा है इसमें जो पोइट है वो कहना चाह रही हैं कि फिशरमैन जो होता है वो बहुत सुबह उठ जाता है, अर्ली मॉर्निंग, और तब उठ जाता है जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, पूरी नींद में होते हैं, और वो अपना काम शुरू करता है। अब वो अपना काम शुरू करता है, दैट मीन्स वो अपनी नाव लेकर के समुद्र की तरफ जाता है जब सब कोई सो रहे होते हैं, सब कोई शांत होता है, और वो अपने नाव को आगे की तरफ लेके जाता है, समुद्र की तरफ लेके जाता है। और वहां पर वो क्यों लेके जाता है, वहां क्यों जाता है, समुद्र पे क्यों जाता है? फिशरमैन का काम क्या है? फिश पकड़ना, राइट, मछलियां पकड़ना। तो वो मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है, बीच समुद्र में जाता है, और वो इसलिए जाता है मछलियां पकड़ने ताकि वो जमीन, मतलब समुद्र के बीच में से अपने फैमिली के लिए खाना वगैरह लेकर के आए, अपना खाना वगैरह लेकर के आए। खाना मैंने कहने का मतलब कि वो वहां से मछलियां निकाल के लाएगा, मछलियां निकाल के लाने के बाद वो उसको सेल करेगा, मार्केट में बेचेगा, और उससे वो ब्रेड खरीदेगा, मतलब खाने की चीजें खरीदेगा, घर का निवारण करेगा, राइट। तो इस तरीके से फिशरमैन जो है बहुत पहले उठता है। तो पहला स्टैंजा उन्होंने इस प्रकार डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, ऑन सेकंड स्टैंजा, हिज लाइफ इज स्ट्रेंज। उसका जो जीवन है वो आश्चर्य से भरा हुआ है। हाफ ऑन द शोर एंड हाफ अपॉन द सी, और he spent his half his life on shore and half in the sea. तो यहाँ पे जो पोइट है वो कहना चाह रही हैं कि उसका जो जीवन है वो बहुत ही अजीब है। कैसे अजीब? कैसे कि वो अपना आधा जीवन तो समुद्र के किनारे गुजार देता है, मतलब आधा जो तो पूरा दिन है वो समुद्र के किनारे गुजार देता है, और आधा बचा हुआ वो अपने समुद्र के बीच में गुजारता है। मतलब वो जमीन पर भी रहता है कुछ देर के लिए, और कुछ देर के लिए वो पानी में रहता है, मतलब समुद्र में रहता है। सो उन्होंने आगे किस तरीके से इस बात को डिस्क्राइब किया है कि नॉट क्वाइट ए फिश एंड येट नॉट क्वाइट द सेम एज यू एंड मी। तो उन्होंने बताया है कि सो ही इज फीलिंग दैट कि ही इज नाइदर ए मैन or girl or woman, like us, like you and me, and not a fish. So he feels that he is neither a man and nor a fish. तो पोइट यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है। तो वो बता रही है कि आधा जीवन तो वो किनारे पे बिताता है, दैट मीन्स जमीन पर बिताता है, और आधा जीवन वो समुद्र के बीच में बिताता है। तो इसका मतलब वो अपने आप को वो अपने आप को एक फिश की तरह समझता है, क्योंकि वो फिश तो हमेशा पानी में रहती है, और ना ही वो अपने आप को एक इंसान की तरह समझता है जो कि जमीन पर रहते हैं। ये ना ही इंसान है, वो अपने आप को इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो फिशरमैन है वो अपने आप को ना ही इंसान समझ पाता है, और ना ही अपने आप को फिश समझ पाता है, ना ही वो पानी में पूरा पूरा रहता है, और ना ही वो जमीन पर पूरा पूरा रहता है ना। So now on third stanza, अब अगले स्टैंजा में देखते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छे से डिस्क्राइब किया भाई ये वाली लाइंस को। द फिशरमैन हैज क्यूरियस आईज। फिशरमैन की क्यूरियस आईज हैं, मतलब उत्सुकता भरी आंखें हैं। अब उत्सुकता भरी आंखें किस चीज के लिए भाई?
उन्होंने उत्सुकतावश क्या क्या देखा है, एंड दैट मेक यू फील सो क्वियर, as if they had seen many things of wonder and of fear. So on third stanza, his eyes had seen the wonder of the sea and also the fear of large sea creature like a whale, shark, and many others. Right. So on third stanza में जो poet है वो कह रही हैं कि ये जो फिशरमैन है, ये जो मछुआरा है, ये अपना जीवन जो समुद्र में बिताता है, इस समय में वो उसके आंखों में डर रहता है और आश्चर्य रहता है। डर भी रहता है और आश्चर्य भी रहता है। आश्चर्य किस लिए? आश्चर्य, अचंभा किस लिए? वो इसलिए कि वो कई सारे ऐसे बड़े जानवरों को देखता है जो हम लोग नहीं देख पाते। व्हेल धरती का सबसे बड़ा जानवर है। शार्क जो कि बहुत खतरनाक है। तो ये जो फिशरमैन है वो वेल्स और शार्क और दूसरे दूसरे स्टारफिश और क्या क्या बहुत सारी चीजें वो समुद्र के अंदर देखता है वो। और उसके अंदर डर किस बात का रहता है? डर इस बात का रहता है कि वो जो जानवर है, वो जो जीव है, वो जो क्रिएचर है, वो उसको खा जाएंगे या फिर उसकी नाव पलट देंगे या फिर कभी समुद्र आएगा, बहुत बड़ा तूफान आएगा समुद्र में और उसकी नाव डूब जाएगी या ऐसा कुछ, इस तरीके का कोई डर। तो उसकी आंखों में एक वंडर है, एक आश्चर्य है और साथ ही साथ फियर है, डर भी है। खुशी है किसी चीज को देखने की, साथ ही साथ उसका डर भी है। सो ऑन द फोर्थ स्टैंजा, अब अगली स्टैंजा में उन्होंने किस प्रकार बताया है? The fourth stanza, on the fourth stanza, the poet mentioned what? They like the sea on foggy days. They are like the sea on foggy days, not gray, not yet quite blue. They are like the wondrous tales he tells, not quite, yet maybe true. So on fourth stanza में उन्होंने कहा है that his life has become so much oriented around the sea. उन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि उसका जो जीवन है वो पूरा ओरिएंटेड है सी के आसपास में, वो उसका पूरा जीवन समुद्र के आसपास में ही गुजरता है। एंड ही हैज लिसन्ड, और उन्होंने कई सारी कहानियां सुनी हैं, साथ ही साथ वो कई कहानियां बताते हैं। मैनी वॉइस स्टोरीज, समुद्र की कहानियां और टेल्स ऑफ द सी, समुद्र की कहानियां वो उन्होंने सुनी हैं या वो खुद बताते हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो वो जो स्टोरीज हैं, सम आर ओनली टेल्स, कुछ जो हैं वो केवल टेल हैं, मतलब कुछ बोली गई कहानी है, उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन शायद कुछ, सम आर ट्रू और yet may be true, और कुछ जो हैं वो सच हैं, जो उसके अपने जीवन की घटना है, उनके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ, तो उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। wondrous tale he tells, not quite yet may be true, सभी टेल्स केवल नहीं हैं, कुछ सच भी हैं। एंड ऑन द लास्ट स्टैंजा, अब आखिरी स्टैंजा में वो क्या कहती हैं? उन्होंने कहा he knows so much of boats and tides. उन्होंने बताया या फिर उन्होंने लिखा है कि जो फिशरमैन है, जो मछुआरा है, ये बोट्स और टाइड्स के बारे में अच्छे से जानता है, मतलब नाव के बारे में और लहरों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। ऑफ विंड्स एंड क्लाउड्स एंड स्काई, और सिर्फ वही नहीं, उसको हवाओं के बारे में पता है, बादलों के बारे में पता है, आसमान के बारे में पता है और जानवरों के, जीवों के बारे में पता है। That he knows everything related to sea, like boat, tide, winds, clouds, creature, etc. But he is clueless. हाँ, वहां पे वो इतना कुछ जानने के बाद भी, लेकिन but when I tell of city things, he sniffs and shut one eye.
और इतना कुछ जानने के बाद भी, but he is clueless as he doesn't know a thing about city life. मतलब इतना कुछ जानने के बाद भी वो शहरी जीवन और शहरी चीजों के बारे में नहीं जानता है. लाइक बिल्डिंग्स, लाविश बिल्डिंग्स एंड लाइट्स, स्ट्रीट्स एंड मैनी मोर थिंग्स. तो इतना कुछ उसके जीवन में है, उसने कई सारी चीजों को देखा है. लेकिन जब मैंने उससे पूछा, ये पोइट बोल रही है, जब मैंने उससे पूछा या फिर उससे कहा शहरों के बारे में कुछ बताओ, या शहरों के बारे में कुछ बोलो, तो उन्होंने कहा कि वो क्लूलेस है. वो क्लूलेस है मतलब उसको कुछ नहीं पता. ही डजंट नो ए थिंग अबाउट सिटी लाइफ. वो कुछ नहीं जानता शहर के जीवन के बारे में. लाइक लाविश बिल्डिंग, ऊंची ऊंची आलीशान बिल्डिंग्स, घर महल, इन सब चीजों के बारे में भी नहीं पता. साथ ही साथ लाइट्स, स्ट्रीट्स, वो सारी चीजों के बारे में नहीं पता कि लाइट्स क्या, कैसे लाइट होती हैं, कैसे लगी होती हैं, कैसे रोड्स होते हैं, कैसे सड़कें होती हैं, कैसे गलियां होती हैं, उसको कुछ नहीं पता. और वो क्या करता है, वो जोर से सांस लेता है या फिर ऐसे करता है एंड शट वन आइज, और एक आंख बंद करके चला जाता है. सो आई होप यू लव दिस पोएम. मुझे लगता है कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी. ये पोएम बहुत अच्छी है, राइट? आपको अच्छी लगी होगी. सो चलिए यहाँ पे कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शन या आंसर हैं. इसमें आपको आप खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर ए और बी आपका होमवर्क है, इसको फिनिश करिएगा, ठीक है? और आगे देखेंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा सारे जो क्वेश्चन वगैरह हैं, आंसर वगैरह हैं, ठीक है? सो डोंट वरी. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वर्ड मीनिंग. यहाँ पे देखते हैं वर्ड मीनिंग. डॉन, डॉन मतलब भोर या प्रातः, मतलब सुबह सुबह. नाउ क्यूरियस मतलब उत्सुक, उत्सुकता भरी आंखें, क्यूरियस आईज, है ना? नाउ नेक्स्ट इज स्नीफ मतलब सूंघना या जोर से सांस लेना. श्योर, श्योर मतलब होता है किनारा, मतलब समुद्र का किनारा, है ना? यहाँ पे तो समुद्र के किनारे की बात हो रही है. नाउ नेक्स्ट इज क्वेर. क्वेर मतलब अजीब या असामान्य. अजीब या असामान्य. नाउ नेक्स्ट इज वंडर. वंडर मीन्स आश्चर्य या चकित होना. okay? आश्चर्य या चकित होना. नाउ नेक्स्ट इज फोगी, धुंधला या कोहरेदार. फोगी, फोग होता है, कुहासा हो जाता है, उसको फोगी बोलते हैं. धुंधला या कोहरेदार. टाइड मतलब लहर. शट मतलब बंद करना, क्लोज. ही शट वन आइज ना, उसने एक आंख बंद की और आंख मार दी. एंड लास्ट वन इज फियर. फियर मतलब डर. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में वर्ड मीनिंग लिखना है, हेडिंग डालनी है वर्ड मीनिंग. एक साइड वर्ड लिखेंगे, दूसरी साइड मीनिंग लिखेंगे, लाइन बाय लाइन, ठीक है? जैसा यहाँ लिखा हुआ है. ओके, सो नाउ दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स. आज के लिए इतना ही. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.